That's it. All right. So, through travelers' eyes, through the eyes of travelers, इसमें हम लोगों ने दो लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है. We have completed two of the travelers, Al-Biruni and Ibn Battuta. And now today we are approaching to the third one. All right. So the third one is Francois Bernier. Let's see what did he observe about India. So Francois Bernier, who was he? He was a French doctor, means he had come from France. So French by birth and doctor by profession. फ्रांस से था और डॉक्टर था. ठीक है. He was a political philosopher and historian also. He came to Mughal Empire in search of opportunities. All right. So just remember this point very importantly, because he had never come to India to visit and to find or as a tourist. He has never come to India as a tourist or scholar, historian. He had come to India to search in the search of job. He wanted some good opportunities to serve and earn money. He lived in India for 12 years, 1656 to 1668. This is the time period between which he was there in India. He was a physician to Prince Dara Shikoh. First of all, he was appointed as physician to Dara Shikoh. भाई उनके पास बहुत पैसा था ना, शाहजहां का बड़ा लड़का था दारा शिकोह, तो उसके पर्सनल फिजिशियन के रूप में, उसके पर्सनल घरेलू डॉक्टर के रूप में इसे अपॉइंट किया गया. But we know that very soon Dara Shikoh and Aurangzeb, they both fought and Dara Shikoh was killed and finally demolished. After that, he searched a new job and he worked as intellectual and scientist with Danishmand Khan. Who was he? Danishmand Khan was an Armenian noble in the Mughal court. ये भी बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, आर्मेनियन नोबल थे, एक मनसबदार थे मुगल कोर्ट में, तो इनके यहाँ लग गया. Bernier traveled to different parts of the country and wrote accounts based on his own observation compared to the social condition in India and the situation in Europe. अच्छी बात इसकी ये रही कि जहां कहीं भी गया उसने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें लिखी. ये भी वही इब्न बतूता जैसा ही था, मतलब बहुत किताबों के पीछे नहीं पड़ा. रियल लाइफ सिचुएशंस को इसने देखा और उसके बारे में बातें करी, उसके बारे में लिखा, और लिखने के साथ ही कंपेयर्ड द कंडीशन ऑफ इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप. ये इसकी बहुत खूबसूरत बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी है कि व्हेनेवर ही वाज राइटिंग अबाउट इंडिया, ही कंपेयर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद द सोसाइटी प्रिवेलिंग इन फ्रांस. जब वो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की बात करता है तो वो कंपेयर करता है फ्रांस के एग्रीकल्चर से. जब वो हिंदुस्तान में जो है गरीबी अमीरी की बात करता है तो फ्रांस से वो कंपेयर करता है. इट मींस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ही वाज कंपेयरिंग विद France and the situation prevailing in France. He dedicated his work to Louis XIV, the King of France. His work was published in France 1670 and 71 and translated into English also. Not just in English, but in English, Dutch, German, and Latin. So in almost all these languages, his works has been translated. Later on, reprinted a number of times. Why? Because his writing was quite valuable in these countries. People who were living there, they wanted to know about India, and the only source to know about India was this one. अब बात करते हैं कि उसकी किताब का क्या नाम था. ठीक है. So you have to note it down that his book is known as Travels in Mughal Empire. The Travels in the Mughal Empire, this is the name of the book that Bernier has written. ठीक है. And he has provided his observation and critical insight about India. He constantly compared Mughal India with contemporary Europe. उसने लुइस 14th के फ्रांस
और मुगल इंडिया के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। He emphasized the superiority of European society too. और कंपैरिजन करने के बाद निष्कर्ष के रूप में क्या दिया है कि यूरोपियन सोसाइटी ज्यादा बेहतर है इंडिया से। ठीक है, तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट इंडिया, ही वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ इंडिया। कौन कौन से मामलों में उसने यूरोप को सुपीरियर बताया है इंडिया की तुलना में, आइए जानते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन उसने जो किया है, so the point is the question of land ownership. The first point that he raised was the question of land ownership. पहला प्रश्न उसने इसी पर बात किया। तो बर्नियर ने बताया क्या, उसने बताया कि the fundamental difference between Mughal Empire and European Empire was the point of land ownership. सबसे पहली चीज, लैंड ओनरशिप में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? वो कहता है कि मुगल इंडिया में लैंड प्राइवेट है ही नहीं है, यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जबकि इंडिया में सब सरकारी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इंडिया की पूरी लैंड यहाँ के बादशाहों की है, जिसको हम कह सकते हैं क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। हु इज बिलीविंग इन दिस? बर्नियर। और बर्नियर की सबसे पहली कंप्लेन क्या है इंडिया के बारे में? लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। According to him, India has no private property. He had a firm belief in the virtues of private property. वो मानता है कि private property होना बहुत जरूरी है। In any country for development, private property is quite important. He thinks that if people have their own property, then in that case they usually perform better services. They try to develop. They try to create more things. They manufacture more things like that. But in the absence of private property, they do not have usually some instinct to work harder, and that's why all the system, whole system becomes like सरकारी, है ना। जैसे आप देखते हो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, हर आदमी मन लगा के काम करता है, सैलरी भले ही कम हो, लेकिन वहां पे फिर भी each employee is just doing his or her best. But in sarkari system, in government system, usually people do not perform their job because they think that government is bound to pay their salary and they need not to work. या उन्हें लग रहा है कि बहुत जी तोड़ काम कर लेंगे तो उसका फायदा तो कुछ हमें होना नहीं है, हमें तो जो सैलरी मिल रही है वही मिलेगी। आपके पास जैसे कोई खेत है और आपका अपना खेत है, तो आप तो बहुत कोशिश करोगे उसमें कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, क्योंकि जितना भी पैदा होगा फायदा आपका होगा। लेकिन अगर ये खेत राजा की हो, आप चाहे जितना पैदा कर लो, फायदा सिर्फ राजा को होने वाला है, तो ऐसे में आप बहुत मेहनत करके तो खेती नहीं करने वाले हो। तो बर्नियर ने सबसे पहली बात तो यही बताई। वो कहता है कि हिंदुस्तान में सारी प्रॉपर्टी राजा की होती है, इस वजह से लोग बहुत मेहनत से उस पर प्रोडक्शन नहीं करते, और इसी वजह से ये देश गरीब है। अगर यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती तो शायद लोग और मेहनत करते और ज्यादा अमीर होते। सो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हार्मफुल। ठीक है, यहाँ पर जमीन का मालिक राजा है और ये बहुत हार्मफुल है। किसके लिए? स्टेट के लिए भी और लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं इससे राजा को बहुत बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि राजा को मिलता है टैक्स, प्रोडक्शन कम होगा तो टैक्स कम मिलेगा, और लोग प्रोडक्शन इसलिए नहीं ज्यादा करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि टैक्स के रूप में राजा का फायदा हो रहा है, हमें तो कुछ बच नहीं रहा है, तो इस वजह से लोग प्रोडक्शन कम करेंगे। इससे लोगों का भी नुकसान है और राजा का भी नुकसान है। मुगल एम्परर owned all land and distributed amongst the nobles. उसका मानना था कि पूरी जमीन राजा की होती है और राजा उसे नोबल्स को दे देता है, फिर नोबल उसे अपने आसामियों को दे देते हैं, फिर वहां से वो किसान उस पर काम करते हैं। और इसी तरीके से ये जो फ्यूडलिज्म है, ये फ्यूडल सिस्टम जो है, इस फ्यूडल सिस्टम की वजह से बहुत लॉस हो रहा है और देश गरीब है। He argued that the lands under the crown ownership could not be passed on to their children, so they were averse to any long-term investment in the sustenance and expansion of production. The absence of private property prevented the emergence of class of improving landlords, as it was in Western Europe to maintain and improve the land. क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति बहुत मेहनत करके जो है वो
लैंड को उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जबकि यूरोप में ऐसा हो रहा है, यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से हर व्यक्ति उस पर बहुत मेहनत कर रहा है। इवन यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉर्ड्स की भी नहीं है, लॉर्ड्स को भी तो केवल दिया गया है, उनका भी ट्रांसफर होता रहता है, मनसबदार होते हैं, यहाँ के हैं कल कहीं के होंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफरेबल टाइप का जो ओनरशिप है, इसकी वजह से लोग खेती पे बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं। इट हैड रूइंड द एग्रीकल्चर एंड ऑप्रेस द पेजेंट्स। इससे एक तरीके से एक तो खेती अच्छी नहीं हो रही है और दूसरे किसानों का शोषण भी बहुत हो रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास जो है उसको थोड़ा सा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो जब चाह रहा है मनमानी टैक्स बढ़ा ले रहा है, रेवेन्यू बढ़ा ले रहा है, शोषण करके लोगों से जमीन से बहुत सारे पैसे वसूल ले रहा है। तो इसका मतलब केवल और केवल जो एरिस्टोक्रेट क्लास है वही थोड़े से फायदे में है, बाकी सबका नुकसान है। बात समझे? तो सबसे पहली उसने जो कंपैरिजन करी वो किस बात पे करी? लैंड ओनरशिप पे। और इसमें उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि हिंदुस्तान में लैंड राजा की होती है और इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती तो ऐसा नहीं होता। जो लोग खेती कर रहे हैं वो अपनी जमीन अपने बच्चों को दे के नहीं जा सकते, इस वजह से वो उस पर मेहनत नहीं करते हैं। ये तो नहीं पहले। दूसरा, सोशल कंडीशन के बारे में वो क्या कह रहा है? सोशल कंडीशन के बारे में वो कह रहा है कि यहां पर अनडिफरेंशिएटेड मासेस और रिच और पावरफुल रूलिंग क्लास, समाज में दो ही वर्ग के लोग हैं, या तो बहुत धनी है या फिर भिखारी है सीधे। बर्नियर कहता है यहां पे मिडिल क्लास नहीं है, देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया। कौन बोलता है ऐसा? आपको क्या लग रहा है, मिडिल क्लास है कि नहीं है? आज तो बिल्कुल है। लेकिन बर्नियर के टाइम में बर्नियर बताता है कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ओनरशिप ऑफ लैंड यहाँ पे प्राइवेट नहीं है। यहाँ पर या तो आदमी जमींदार है या जमीनहीन है, भूमिहीन है। तो जो भूमिहीन है वो किसानी कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका फल उसको कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास जमीन है, वो बिना मेहनत के भी बहुत सारा इकट्ठा कर रहा है पैसे। तो इस तरीके से देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। So ruling class is always rich class and poor class is totally means a bigger class, you can say. They do not have anything to keep and pass on. फिर बर्नियर ने एम्परर और सब्जेक्ट के बारे में 15 इसमें बर्नियर्स ने एम्परर और सब्जेक्ट के बारे में क्या अपनी डिटेलिंग करी है, लेट्स सी दैट। बर्नियर डिस्क्राइब मुगल एम्पायर एज किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियन। मुगल एम्परर को किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियन बताया गया। किसने बताया? बर्नियर। कहता है यहां का राजा भिखारियों का राजा है, असभ्य लोगों का राजा है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो बताता है कि यहाँ के जो सिटी और टाउन्स है वहां पे वहां की हवा बहुत प्रदूषित है, इल एयर, ठीक है, ओवर स्प्रेड ऑफ बुशेस, बुशेस बहुत यहाँ पे ओवर स्प्रेड हो चुके हैं, और पेस्टिलेंशियल मार्शेस, दलदली जमीन है, बेकार जमीन है जहां पर खेती नहीं हो सकती। तो इस तरह की यहाँ पे जमीन है। He attributed all these problems to the crown ownership of land. इसका मानना था ये जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं की एक ही जड़ है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। वो कहता है कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से ये सारी झंझट हो रहे हैं। मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डू नॉट सपोर्ट हिज थियरी ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। तो कुल मिला के आप समझ रहे हो, जितनी समस्या वो बता रहा है सब में घूम फिर के उसके लिए कारण एक ही है। अगर यहाँ के सब्जेक्ट्स बहुत गरीब हैं तो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यहाँ पर मिडिल क्लास नहीं है उसका भी कारण क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यहाँ पर जो है वास्ट मासेस है, अनडिफरेंशिएटेड, सारे के सारे गरीब हैं,
उनका भी कारण क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। तो हर मुसीबत की जड़ में वो एक ही बात मानता है। अब बात आती है कि उसके इस थियरी को हम लोग रीचेक करें, वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो इस चीज को जब हम रीचेक करते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में हिंदुस्तान का कोई डॉक्यूमेंट नहीं कहता। अकबर के टाइम में अबुल फजल साहब ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा में जो तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड आईने अकबरी, और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है, लेकिन ही हैज नेवर सेड एनीथिंग अबाउट द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पे जमीन राजा की होती है। ठीक है, अब बात आती है कि फिर बर्नियर को ऐसा क्यों क्यों लग रहा है, जब हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा है। हमारे यहाँ के हर आदमी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ जमीन सबकी है भाई, प्राइवेट ओनरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है सब। तो फिर बर्नियर को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे क्राउन ओनरशिप है और जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है? यू नो द रीजन? सो द प्राइम रीजन वाज हाई रेवेन्यू। यहां पर रेवेन्यू बहुत हाई था, और हाई रेवेन्यू का क्या असर हुआ भाई? अब किसी से अगर रेवेन्यू बहुत लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है बर्नियर को ऐसा लगने लगा कि इतना रेवेन्यू लोग क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जमीन राजा की है, वो मनमानी तरीके से रेवेन्यू ले सकता है। अगर ये लैंड पीपल की होती तो फिर राजा थोड़ा थोड़ा टैक्स लेगा ना, वो इतना सारा रेवेन्यू के लिए क्यों ले लेगा? 50% तक वो कभी कभी रेवेन्यू ले लेता है। So there was a wide gap between the poorest of poor and richest of rich. ठीक है, there is no middle class. So बर्नियर का ऐसा सोचना सिर्फ एक कारण से, तो इसको बेटा आप लोग याद कर लो, बर्नियर ऐसा क्यों मानता है। सेकेंड थिंग इज ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या है? इन इसी चीज को जो हम क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड कह रहे हैं, इसी क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को दो अलग अलग लोगों ने दो अलग अलग बातें कही हैं। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड का जिक्र किसने किया था? बर्नियर ने। ठीक है, सेम इसी चीज को, बर्नियर की इसी बात को उठा करके फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू होते हैं, उन्होंने भी बर्नियर को पढ़ा था, और बर्नियर के ही इस विचार के आधार पे कि यहां पर हिंदुस्तान में जो है वो सारी जमीन राजा की होती है, इस आधार पे मॉन्टेस्क्यू ने एक नया वर्ड दिया, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, कि जो ओरिएंट में लोग हैं वो सबके सब डेस्पॉट हैं। डेस्पॉट का मतलब क्या हुआ? निरंकुश। ठीक है, निरंकुश शासक है। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, in Asia, not just in India, but in whole Asia, the kings enjoyed absolute authority over his subjects and owned all lands. तो मॉन्टेस्क्यू ने इसी क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को एक नया शब्द दिया, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, और कहा कि पूरे ओरिएंट में, पूरे ईस्ट एशिया में ये चीज चलती है कि यहाँ पर राजा की ही जमीन होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। There is no private property. All people except king and nobles struggle for survival. अच्छा, इसी चीज को अब दूसरा व्यक्ति क्या नाम देता है? कार्ल मार्क्स साहब। कार्ल मार्क्स ने इसे एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा। तो फर्क कुछ नहीं है, बर्नियर ने जिसे क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड कहा है, सेम चीज को मॉन्टेस्क्यू ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म कहा है, और उसी बात को कार्ल मार्क्स साहब ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा है, कि ये एशिया में मोड ऑफ प्रोडक्शन यही है। He observes that before colonialism, यानी जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज नहीं आए थे या और भी यूरोपियन लोग आकर के यहाँ पर शासन करना नहीं शुरू किए, उसके पहले यहाँ पर जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन था दैट वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। यहाँ पर चूंकि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड थी, इस वजह से सारा धन, सारा प्रोडक्शन वो स्टेट के द्वारा छीन लिया जाता था। और विलेज कम्युनिटीज वो एगलिटेरियन थी, यानी जो गांव की कम्युनिटी थी वो सब के सब बराबर थे, सिर्फ खाने पीने भर के उनके पास होता था, नथिंग एल्स।
imperial court respected these villages as long as flow of surplus was continued. कार्ल मार्क्स साहब एक बात इसमें और भी एड ऑन कर देते हैं कि ये विलेजेस जो हैं वो यहाँ पे ऑटोनॉमस है, ठीक है। इसका मतलब गांव का शासन अलग चलता रहता है, गांव में राजा इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता, राजा कोई भी हो, गांव की व्यवस्था वैसे ही चलती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप यूं कह सकते हो, इसको आगे चल करके कई सारे लोगों ने और भी शब्द इसको देना शुरू किया। होल्ड ऑन बेटा, जस्ट अ सेकंड। सेम इसी व्यवस्था को जिसे हम जो है एग्लिटेरियन विलेजेस कहते हैं, या ऐसे गांव जहां पर सारे लोग बराबर होते हैं और प्रोडक्शन और जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सबका हिस्सा होता है। ये व्यवस्था गांव में तब तक चलती रहती है जब तक कि लोग टैक्स टाइम से जमा करते रहते हैं, यानी टैक्स टाइम से जमा हो रहा है तो गांव ऑटोनॉमस है, अपनी व्यवस्था खुद कर ले। जब टैक्स नहीं जमा होता है तब ऐसे केसेस में चलो all right, so now see, imperial court respected these villages means these villages can continue their autonomy till they are paying their taxes, and once they stop paying taxes their autonomy is snatched away. तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। कार्ल मार्क्स साहब इसको कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो गांव है वो एक तरह का लिटिल रिपब्लिक है। इसको एक आगे चल करके एक फ्रेज आएगा लिटिल रिपब्लिक, तो आप पढ़िएगा कि व्हाट इज दिस लिटिल रिपब्लिक। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा रिपब्लिक है जिसमें जनता आपस में चुन करके लोगों को और उसी से शासन चलती है, लाइक पंचायत सिस्टम गांव में आपने सुना होगा। तो मुगल पीरियड में गांव में पंचायतें हुआ करती थी, वो पंचायत गांव के लोगों पे टैक्स लगाती थी, गांव में नाली नहर सफाई पानी ये सब व्यवस्थाएं वो अपने से करती रहती थी। राज्य का उसमें कुछ लेना देना नहीं था, राज्य वाले सिर्फ एक ही काम करते थे, क्या, टैक्स वसूलते थे। और टैक्स जब तक मिल रहा है तब तक राज्य को कोई दिक्कत नहीं है, जब टैक्स मिलना बंद हो जाता था तब वो परेशान करते थे लोगों को। अदरवाइज राजा कोई भी हो, गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, उनका अपना सिस्टम ऑटोनॉमस है, वो चलता रहता था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, नोट डाउन। तो ये रहा आज की क्लास में, हम लोगों ने फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पढ़ा। इसके बाद कुछ एक चीजें इनके बारे में और हैं जिसको आपको जानना चाहिए, वो आप जानेंगे अगली बार में, अगली क्लास में, क्योंकि इसने ये बहुत बड़ा क्रिटिक है। आज तो हमने बताया कहाँ कहाँ पे इसने दिक्कतें बताई हैं हिंदुस्तान में, खास करके इसने क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड को सबसे बड़ी वजह बताई है देश की तबाही के पीछे, और साथ में कंपैरिजन करके ये भी साबित किया है कि हिंदुस्तान यूरोप के मुकाबले में काफी पिछड़ा हुआ है। अब कल हम इसके ही स्टेटमेंट को पकड़ करके थोड़ा और एनालिसिस करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसने काल्पनिक तरीके से बात करी है, ठीक है।